welcome to the next video for integration. Today we are going to discuss the miscellaneous exercise. So this video is again divided into two parts. In the first part we will discuss indefinite integration, that is integration without limits, and then in the second video we will discuss the miscellaneous questions which have definite integration questions. So let's begin. We are starting with question number 1. I'm not going to do the entire questions. I will just give you a brief hint in each question and I want you to understand each and every type. Check here. Can I take x common from the denominator and it will be this, and can I again still factorize the denominator? And now check, children. If you remember partial fraction, I have already done a video on the partial fraction. Three linear factors are there. So a upon the first factor plus b upon the second factor plus c upon the third factor. So you can solve the question number 1. In question number 2, again, integration of 1 upon under root of x plus a plus under root x plus b, children. So this question again cannot be solved directly. So obviously denominator में थोड़ा complex term है तो उसको कोशिश करते हैं root को हटाने का. तो root को हटाने का एक ही तरीका है, just rationalize the denominator. So let's rationalize the denominator and check what are we getting. So we get integration of under root of x plus a minus under root x minus b upon a plus b into a minus b is a square, root हट गया, minus b square. So x minus b, check, x gets cancelled, a 1 upon a minus b goes out because it is a constant, and now only integration left is of x plus a minus integration of x minus b dx, and you know direct formula can be used, x to the power n integration. In question number 3, integration of 1 upon x into under root of ax minus x square dx. Again very clearly लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो x को वैसे 1/t पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे a भी है तो हमने a/t पुट करना है. तो जब ये पुट करेंगे तो चेक करें dx की वैल्यू क्या आएगी. चेक करिए, t टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस t स्क्वायर, राइट, dt. So let's put the question. So this is minus a upon t square dt, dx की जगह आ गया. अब यहाँ पे पुट करते हैं a by t अंडर रूट ऑफ a इंटू a by t minus a square by t square. Let's take the LCM. This t and t gets cancelled. This a and a gets cancelled. So we are left with minus 1 by t dt. Again let's take the LCM. a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा और अंदर क्या रहेगा, t minus 1, चिल्ड्रन, और ये अंडर रूट से t स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 by t dt a times under root t minus 1 upon t. Again this t and t also gets cancelled. Now again minus 1 by a goes out, integration of, can I write it as t minus 1 raised to power माइनस हाफ, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है dt. अब आपको अगेन x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली आता ही है. दिस इज क्वेश्चन 3 फॉर यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन एक्चुअली में टफ नहीं है. ये क्वेश्चन है, चेक करिए, क्या मैं इसको अपॉन एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड कर सकती हूँ? और अगर मैंने x की पावर 4 से डिवाइड किए तो ऑब्वियसली मैथ्स का रूल है कि मुझे x टू द पावर 4 रेज टू पावर 3/4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में ये सब किया है. तो चेक करिए, 4 और 4 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5 हो गया बेटा, और ये 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 रेज टू पावर 3/4. नाउ चेक, can I put 1 plus 1 by x to the power 4 equals to t to the power, अब मुझे जैसे रूट होता है तो t स्क्वायर पुट करते हैं, तो इसमें 3/4 4/3 पुट कर दे ताकि वो हट जाए पावर. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा,
माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, x टू द पावर -4 का डेरिवेटिव -4 अपॉन x टू द पावर -5. It can be written like this: dx is equal to 4/3 t to the power 4/3 minus 1, यानी कि 1/3 dt, राइट. सो अगेन ये 4 हमें नहीं चाहिए, वो यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ उधर चला जाएगा, कैसे भी कर लीजिए. तो हमारे पास आ गया 1/x to the power 5 dx is equal to minus t to the power 1/3 upon 3 dt, right? So now this you can substitute. So integration of minus 1/3 t to the power 1/3 dt, right? इस पूरे का पूरा रिप्लेस हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, t to the power 4/3 रेज टू पावर 3/4, जो कि अगेन सिर्फ t हो गया. अब -1/3 t to the power 1/3 अपॉन t को लिख सकते हैं दिस रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल. अब अगेन t टू द पावर n का फॉर्मूला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर t टू द पावर n का फॉर्मूला लगा लीजिए. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 dx. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल ढूंढिए जो कि 6 होता है और हटा दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो x को पुट कर देते हैं t टू द पावर 6, क्योंकि 6 से 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 1 सो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt. सो दिस इज 6t टू द पावर 5 dt अपॉन t टू द पावर 6 रेज टू पावर 1/2 प्लस t टू द पावर 6 रेज टू पावर 1/3. तो 6 बाहर, t टू द पावर 5 अपॉन, चेक कर लीजिए क्या आया, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर dt. अब आपको अगेन आप चाहो आप टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचा, t प्लस 1 और ऊपर t टू द पावर 5 dt. ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बच गया. इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 अपॉन t प्लस 1. आई होप यू विल रिमेंबर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है डिनोमिनेटर से, राइट? तो आप पहले लॉन्ग डिविजन करोगे, फिर इसको उस पार्ट में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन द डिवाइजर में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज हाउ यू विल इंटीग्रेट. फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी सिंपल. डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं बेटा, ऊपर की डिग्री कम है, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ तभी लगता है. अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगा, आई होप वो क्लियर है. a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन द सेकेंड फैक्टर, और आपको निकालना आता ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है डिनोमिनेटर को एक्सपैंड ना करो. डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करोगे तो डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा. सो टू सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर, कैन आई पुट x माइनस ए इक्वल्स टू टी. सो वी गेट dx इज इक्वल टू dt चिल्ड्रन. सो साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा t प्लस ए अपॉन साइन t dt चिल्ड्रन. नाउ चेक हियर, अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी. अब आप अलग अलग कर दीजिए और इंटीग्रेशन जस्ट सेपरेट इट आउट. साइन इनवर्स, अच्छा इसमें ये गलती नहीं करनी, जब आप सेपरेट आउट करोगे तो आपका बचेगा सिर्फ कॉस ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन, यानी कि कॉट टी साइन ए डी टी. कॉस ए जो है दैट इज अ कांस्टेंट, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो है वो सिर्फ टी आएगी. अगेन साइन ए जो है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर चला जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, और कॉट टी का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, राइट? सो दैट इज हाउ यू विल solve this question and obviously put the value of t back. Let's talk about question number 8. Again, it looks little tough, but it is actually not. E की power आपको, again let me tell you what property I am using. A to the power x can be written as x log a.
तो मैं इसे वापस कर दूंगी. कैन आई राइट दिस एज log x to the power 5 minus e log x to the power 4 upon e log x to the power 3 minus e log x to the power 2. अब चेक करो, e और log हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया. अब आपको क्वेश्चन करना आता ही है. ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, राइट, जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर, तो अंदर x3 माइनस x2 बचा अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 1. और ये कैंसिल अगेन कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंदर क्या बचा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड नाउ यू नो द इंटीग्रेशन. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन. अगर मैं साइन x को t पुट कर दूं तो मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x dx इज इक्वल टू dt. सो डायरेक्ट. और उसके बाद आपको पता ही है टाइप 4 लग जाएगा, राइट चिल्ड्रन. अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन इंटीग्रेशन. ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 10. अगेन क्वेश्चन लुक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है नहीं. यहाँ पे एक एक्स टर्म मिसिंग है. सो कैन आई राइट दिस एज होल स्क्वायर so that we can apply a formula. Similarly for the cos term also same way. Denominator I am for now I am keeping the same, but I'll tell you what's the trick in the denominator also. This is a little hot question. तो करते हैं. न्यूमरेटर अगर मैं यूज स्प्रेड करूँ तो वो आएगा दिस माइनस दिस a माइनस बी इंटू a प्लस बी, राइट, अपॉन. अब मैं डिनोमिनेटर में चेक करिए. कैन आई राइट 1 एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. लेकिन उससे भी मुझे हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे ऊपर कुछ, अगर मुझे कुछ कैंसिल करना है तो मुझे इन दोनों में से कोई एक फैक्टर बनना चाहिए. तो कैन आई राइट इट एज होल स्क्वायर ताकि मेरा रेज टू पावर 4 आ जाए. अब चेक करिए. अब इसे एक बार और, इसको एक बार और ओपन कर सकते हो सेम वे, स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, ये तो न्यूमरेटर में था ही. अब चेक करिए डिनोमिनेटर. if I try and open the denominator, a plus b whole square open करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a square plus b square plus 2ab, राइट, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ही. तो चेक करिए, ये और ये कैंसिल हो गया. अब चेक करिए, डिनोमिनेटर में भी आ गया साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x. तो चेक करिए, ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लग ही जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 जैसा भी क्वेश्चन मैं आपको थर्ड वीडियो में करा चुकी हूँ. इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसको हम साइन a माइनस बी से, ये स्पेशल क्वेश्चन था इफ यू रिमेंबर, हम साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि वो एक कांस्टेंट है. किसी भी कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन का और कोई तरीका नहीं है सॉल्व होने का. सो दिस इज अगेन अ हॉट क्वेश्चन, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो नाउ हाउ विल यू डू इट. चेक. अभी भी हमने कुछ खास नहीं क्रिएट किया है, बट वी हैव टू क्रिएट दीज एंगल्स. जो हमें एंगल गिवन है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन सेम cos x प्लस a cos ऑफ x प्लस b. तो x प्लस b मुझे चाहिए तो मैं उसे एज इट इज रखती हूँ साइन ऑफ x प्लस b. कैन आई टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड से
Okay, rather than doing this, can I now see, you will come to know how you have to work it out. अगर मेरा इससे फैक्टर्स नहीं बन रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो वैसे तो इससे भी बन जाएगा फैक्टर्स। अगर मैं माइनस बी और माइनस एक्स को कंबाइन कर लूँ, राइट, देन आई विल बी एबल टू फॉर्म द फैक्टर्स। लुक हियर, लेट मी शो यू, चेक करिए। Okay, if I form the factors like this, sin of a plus x तो मुझे चाहिए ही, राइट, और मैं इनमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ और अंदर x प्लस बी बन जाए। सो आई होप नाउ आई एम क्लियर। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए जैसे अभी हुआ था, तो यू शुड नो हाउ टू वर्क इट आउट, हाउ टू रिमूव योर कंफ्यूजन, right? Now you can use the formula sine of a minus b, which is same sin a cos b minus cos a sin b. And now you separate out the terms. And this divided by this minus integration of this upon this. So now you will be able to integrate it. That is question 11 for you. Let's talk about question number 12. Again 12 थोड़ा ज़्यादा आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक्स क्यूब है और नीचे एक्स की पावर 8 है, तो उसको मैं 4 होल स्क्वायर लिख ही सकती हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स की पावर 4 को टी पुट कर दिया, तो 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो यहाँ डी टी। अब मुझे कैसे पता चला कि x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि ऊपर x क्यूब था और मुझे ये पता है कि x क्यूब किसका डेरिवेटिव होता है, x की पावर 4 का। दैट इज वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी सिंपल। e टू द पावर x को t पुट कर दो, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब आप चाहो तो इसे डायरेक्टली ओपन करके टाइप 4 से भी कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के, नहीं तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द सेकेंड फैक्टर, विच एवर सूट्स यू। t plus 1 into t plus 2 plus t, right? So you can do it either ways. In question number 14, again, I don't know how many of you remember this concept. Again, this I have taught you in the video where I taught you partial fraction. ये क्वेश्चन स्पेशल है, हॉट्स है, और क्या इसमें क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल लगनी है, लेट्स सी दैट। इसमें हमें पुट नहीं करना है, अभी हम हर क्वेश्चन में पुट कर रहे थे, राइट, पुट e टू द पावर x एज t। अब हम इसे लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। सो मेरा क्वेश्चन है वो 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 बन जाएगा। चेक करो, मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लिखा है, राइट। सो दिस इज a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। सो अगेन जब आप इंटीग्रेशन का साइन लिखोगे और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, तो आप पहले t को वापस पुट करोगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो dx में था। इसी वजह से जब मैं इंटीग्रेशन का साइन लिखूंगी तो मेरा x ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट किया है। तो ये गलती नहीं करनी है कि t में ही इंटीग्रेट नहीं कर देना, बिकॉज वी हैव let x square equals to t, we have not put it as t. All right, this was question number 14 for you. Let's move on further. Question number 50, अगेन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस एक्सपोनेंशियल और लॉग की हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज लगती हैं। e to the power log sin x can be written as sin x, sorry this is cube। अब आपको दिख ही रहा होगा, cos x को आप t पुट कर दोगे और माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन e और e की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी, e log 3 log x को लिख सकते हैं log x to the power 3, एंड क्योंकि रेस टू पावर -1 था तो मैं उसे नीचे ले जाती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे रह गया x क्यूब, अब तो आपको क्लियरली दिख ही गया है, x to the power 4 प्लस टी को
प्लस 1 को t पुट कर दीजिए और डेरिवेटिव मुझे दिख ही रहा था 4x³ dx equals to dt. That is question number 16 for you. 17 भी दिखने में थोड़ा सा टफ है लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल भी टफ नहीं है. सिंपल लॉजिक यूज होना है. क्वेश्चन कभी देख के नहीं घबराना है. You just remember the main thing about the question. Just remember the concept. Question अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा. f of ax plus b को हम t पुट कर देते हैं बेटा. तो डेरिवेटिव लेते हैं जो कि क्या आएगा f डैश ax plus b इंटू चेन रूल लगाते हैं. डेरिवेटिव ऑफ ax plus b इज a dx dt. a का डेरिवेटिव एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, एक कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, प्लस b का डेरिवेटिव 0. सो a उधर चला गया, यानी कि ये क्या हो गया क्वेश्चन 1/a t to the power n dt. राइट चिल्ड्रन. अब आपको इंटीग्रेशन करना आता ही है x to the power n का फॉर्मूला. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 18. अगेन 18 लुक्स टफ बट अगेन इट इज नॉट टफ. अब साइन क्यूब है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं आ सकता. तो मैं क्या इसे साइन 4x लिख दूं, और क्योंकि मैं उसे साइन 4x लिख रही हूँ, मैंने साइन न्यूमरेटर इस वाली टर्म की न्यूमरेटर को साइन x से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा एज मैथ्स रूल. सो कैन आई टेक नाउ साइन x to the power 4 कॉमन फ्रॉम द स्क्वायर रूट एंड राइट इट एज साइन स्क्वायर x, और अंदर मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स. अब चेक करिए क्या हो गया. इसको ऊपर ले आते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, अगेन डिविजन अलग अलग सेपरेट आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा. अब अगेन आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, अगर मैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को टी स्क्वायर पुट कर दूँ क्योंकि रूट हटाना है, तो कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है. राइट. अगेन यू नो द कॉन्सेप्ट. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड. That is the logic of question number 19 for you. Now, 18. Now let's move to 19. इंटीग्रेशन, इसमें भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगना है. साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2. सो डिनोमिनेटर में तो पाई बाई 2 ही आ गया. अगेन क्या मैं, तो इसको 2/पाई आ जाएगा. क्या मैं कॉस इनवर्स इसमें भी रूट एक्स में भी फॉर्मूला लगा सकती हूँ और लिख सकती हूँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स. जरा ओपन कर दीजिए तो क्या आएगा 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स राइट dx माइनस 2/पाई बाहर था और पाई बाई 2 dx. अगेन इसका तो इंटीग्रेशन पता ही है आपको. इसका इंटीग्रेशन अगेन आई होप यू विल रिमेंबर कि आप कैसे करोगे. इन्वर्स वाले इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे. इन्वर्स वाले की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकते, तो आपको याद है आइलेट, यू विल जस्ट यूज आइलेट रूल. आइलेट रूल में कैसे करना होगा आई होप अगेन आपको याद होगा. मैं आपको सिर्फ यही करके दिखा रही हूँ. रूट एक्स इंटू 1 ले लोगे दूसरा फंक्शन, सो इनवर्स, सो u and v. So first function as it is, integration of second function that is x minus whole integration derivative of sin inverse x 1 upon under root of 1 minus x square. तो 1 minus x into chain rule integrate derivative of root x which is 1/2 root x, right, into integration of 1 that is x dx, right. So ये x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आया
x अपॉन 1/2 बाहर ले जाते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म. अगेन आपको टाइप ऑलरेडी पता है, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. अगेन थोड़ा दिखने में ही डिफिकल्ट है, एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है. आप सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में रूट है और एक अजीब सा टर्म है, कोशिश करिए उसे सिंप्लीफाई करने का डिनोमिनेटर को. और इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली रैशनलाइजिंग करने से डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है बेसिकली. सो क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बचा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर. सो इसके साथ और ये कट ही गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. अब आप इसे अलग अलग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगेन आपको आता है डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स. अगेन इसको देख के घबराना नहीं है. 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर पुट कर देना है. नॉर्मल फंडा की रूट में जो टर्म है उसे टी स्क्वायर पुट करो ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. तो माइनस डी एक्स इक्वल टू 2t dt आ जाएगा. तो माइनस इंटीग्रेशन, आई एम जस्ट डूइंग दिस पार्ट ओके फॉर यू. सो अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, इसमें नीचे t आ गया और इसकी जगह आ गया 2t dt माइनस साइन के साथ. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो t और t कैंसिल. अगेन अंडर रूट ऑफ, अगेन आपको इंटीग्रेशन आता ही है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्म. अगेन वी हैव डन दिस टाइप. लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 21. आई होप ये भी आपको फॉर्म याद होगी. ई एक्स के साथ अगर आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स सी टर्म दिखे, इसका मतलब आपको अगेन याद आ जानी चाहिए कि कौन सी फॉर्म हो सकती है? ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म. बट इस फॉर्म के लिए आंसर ई एक्स एफ एक्स आता है, बट इस फॉर्म के लिए हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं दिख रहा. तो उसे कैसे बनाना है? सो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स आप स्प्लिट कर दीजिए. 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x. अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आते ही हैं. ई टू द पावर एक्स 2, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन अगेन इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स के साथ क्या बचा? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स. अब आपको दिख गया होगा एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो आंसर आ गया ई एक्स tan एक्स. ऑब्वियसली प्लस सी आएगा क्योंकि इनडेफिनेट क्वेश्चंस की बात हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी डायरेक्ट दिख रहा है. पार्शियल फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 3 डिग्री है. सो इट इज a अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन द फैक्टर का होल स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर में है, प्लस c अपॉन अनदर लीनियर फैक्टर. दैट इज योर इक्वल टू योर पार्शियल फ्रैक्शन. First you find the value of a, b and c using hit and trial method, right? And then you integrate this part of the question. That is question number 22 for you. Question number 23. Again थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट. अगेन ये कॉन्सेप्ट मैंने टाइप 3 में ही कराया था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. आप x की जगह cos 2 थीटा पुट कर दोगे तो आपका ऑब्वियसली x की जगह cos 2 थीटा पुट करोगे तो आपका डेरिवेटिव तो आ ही जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट चिल्ड्रन? सो dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा.
ये तो आपकी dx की वैल्यू आ गई। अब चेक करिए क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है फिलहाल, बट ये टफ है नहीं। और टू बाहर, -2 बाहर चला गया, यहाँ पे dx की जगह आ गया sin 2 थीटा d थीटा। अब चेक करिए इसको कैसे सिंप्लीफाई, मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ। अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 कैंसिल, स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर कैंसिल, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ गया। यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, आई होप यू विल रिमेंबर, सिर्फ थीटा होता है, राइट। सो ये टर्म सिंप्लीफाई हो गई पूरी। सो थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अगेन आई होप यू विल रिमेंबर आइलेट। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये u है, ये v है। बाय पार्ट्स लगा लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अगेन 24 इज लिटिल डिफिकल्ट टू लुक एट, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। सो लेट्स रीअरेंज दीज टर्म्स। ये आया, और log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कैसे आया। 2 log x को लिख सकते हो log एक्स स्क्वायर, और दो टर्म के बीच में माइनस का साइन है तो डिवाइड हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ आया log ऑफ, अलग अलग कर दे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे यहीं से दिख गया कि अगर मैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t पुट करूँ बेटा, तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि मेरे पास एक्चुअली में x की पावर 3 होनी चाहिए, ताकि मैं उसे माइनस डी टी बाई 2 पुट कर दूँ, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे जो है वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब रखूँगी, जो कि मुझे डी एक्स के साथ चाहिए, और जो दूसरा वाला है वो मैं रूट के अंदर ले जाऊँगी। तो अगर मैं x को रूट के अंदर लेके जाऊँगी तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट चिल्ड्रन। बस ये चीज़ याद रखनी है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चेक करिए, 1 बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ, अगेन इसे अलग कर दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप पुट कर दीजिए, तो ये आ गया -1/2 बाहर डी टी, ये एक्स क्यूब और डी एक्स एक साथ पुट हो गए, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट टी लॉग टी डी टी। अगेन आपको पता ही है आइलेट, अगेन लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक, तो ये u और ये v, और इंटीग्रेशन अगेन बाय पार्ट्स हो जाएगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24 फॉर यू। बाकी 25 से लेकर 40 तक सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। 41 बता देती हूँ। सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है उसमें e टू द पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख लीजिए, और एलसीएम ले लीजिए। तो चेक करिए, e टू द पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर x इंटू एक्स इज e टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट चिल्ड्रन। अब आपको दिख ही रहा होगा, e टू द पावर x को t पुट कर दोगे तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। सो अगेन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स t, राइट, प्लस c। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, यू विल बी एबल टू सी द फॉर्मूला। अगेन 42 क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अगेन इसमें डायरेक्टली cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, और cos 2x का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें sin एंड cos दोनों होते हैं। सो आई होप यू विल रिमेंबर दैट फॉर्मूला, राइट, एंड यू विल पुट इट डायरेक्टली। That is how you will solve this question. If you still have any doubt in any of the questions, please write in the comment below, so that I am able to tell you how to do any difficult question in indefinite integration. So I hope you will remember that which formula of cos 2x you have to use. Cos 2x के basically 3 नहीं 4 फॉर्मूले होते हैं, एक सिर्फ साइन में, एक सिर्फ कॉस में, एक टैन में,
और एक साइन एंड कॉस दोनों में। तो इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस दोनों है तो ऊपर भी साइन एंड कॉस दोनों वाला फॉर्मूला लगेगा। That's all for this video. We will continue the miscellaneous exercise in the next video also for definite integration questions. So, say